السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 4 کے چوتھے رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ چلیے ویورز، اب اس رکوع کی شروع کی آیت کے ذریعے سے اپنے ہجے اور قواعد کی مشق کر لیتے ہیں۔ واو زبر واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اور حرکت کو پڑھنے کا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر کی آواز زبر اس حرکت میں سے ہے کیونکہ زبر زیر پیش تینوں ہی حرکت ہیں، تو جہاں زبر کی آواز اوپر کو جائے گی تو حمزہ کی آواز ہماری نیچے آئے گی کیونکہ اس پر ہماری زیر کی حرکت ہے۔ زال پر کیونکہ جزم سکون ہے، جس حروف پر جزم سکون ہو اس کو ہمیشہ ہم پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا وَإِذْ، غین زبر غا، دال واو زبر دو، غدو، تا زبر تا، غدوتا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اور جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ حرف لین کہلاتا ہے۔ واو ساکن ہمارا حرف لین کہلاتا ہے، اور حرف لین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نرم آواز کے ساتھ ہمیں جلدی ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے غدوتا، میم نون زیر من،
अब आप देखेंगे कि इस नून को हमने सिंपल ज़ाहिर करके पढ़ा है, क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद जब हुरूफ हल्की आवे तो हुरूफ हल्की कौन कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन और खा। ये 6 हुरूफ हमारे हुरूफ हल्की कहलाते हैं। जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आएँ तो नून की आवाज़ को हमें ज़ाहिर करके पढ़ना होता है। सिंपल हम यहाँ ज़ाहिर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने पढ़ा मिन अहली का, ता पेश तू, बा वाव ज़बर बाव, तू बाव। अब देखिए वाव पर क्योंकि तशदीद है, और तशदीद वाले हुरूफ को हमारी नूरानी क़ायदे की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि हम तख्ती नंबर 13 तशदीद को पढ़ने का तरीका ये है कि इसमें एक किस्म की सख्ती होती है और तशदीद को 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार अपने से पीछे वाले हुरूफ के साथ और एक बार अपनी हरकत के साथ। तो हमने एक बार इसको बा के साथ पढ़ा, बा वाव ज़बर बव, तू बव, वा ज़ेर वी, तू बव वी, हमज़ा लाम पेश उल, तू बव वी उल, मीम वाव पेश मू, हमज़ा साकिना। अब आप देखिए हम इसको मुँह पढ़ते, लेकिन क्योंकि छोटी सी हमज़ा है और उसके ऊपर जज़म सकून है तो ये हमारी हमज़ा साकिना कहलाएगी। तो हम इसको मुँह ना पढ़कर हम इसको मुँह पढ़ेंगे, क्योंकि हमज़ा साकिना एक ऐसा केस है जिसको पढ़ने में हमारा झटका होता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा मुँह। मीम ज़ेर मी, नून या ज़र नी, मुँह मी नी, नून ज़बरना, मुमिनीना। या हुरूफ मद्दा है, इसलिए कि या साकिन से पहले ज़ेर है। और पढ़ने का तरीका इसको यह है कि इसको थोड़ा खींच कर पढ़ें। जैसे हमने यहाँ पे मी की हरकत को नहीं पढ़ाया, मी पढ़ा, इसी तरह इसको नी, मुमिनीना, इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर हम पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, मा क़ा, आइन ज़ेर आई, मा क़ाई, दा ज़बर दा, मा क़ाईदा, लाम लाम ज़र लिल, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, लिल क़ी। अब लिल जहाँ पर भी लाम साकिन आए वहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा क़लक़ला ना हो। लाम साकिन पर मोस्टली पढ़ते हुए क़लक़ला ज़रूर होता है, तो इसीलिए बार बार मैं इस बात पर पुश करती हूँ कि लिल में लाम साकिन में क़लक़ले को रोकने की हमें मशक़ करनी पड़ती है, तभी ये क़लक़ला हमारा रुकता है। क़लक़ला यानी आवाज़ का लौटना। ये लिल लिल, ये लिल की आवाज़ वापस नहीं लौटनी है, लिल पर हमें रोक देना है। लिल क़िताल, छुट्टी हो गई है, पूरा हो गया है इस तरीक़े से पढ़ने से। इसमें बिल्कुल भी आवाज़ का लौटना हमें नहीं है। लिल क़िताल, ता ज़बर ता, अलिफ ज़बर ता, क्योंकि अलिफ हुरूफ मद्दा है। हुरूफ मद्दा इसलिए है कि अलिफ से पहले ज़बर है। पढ़ने का तरीका इसको है कि इसको थोड़ा खींचकर हमें पढ़ना है। लिल क़िताल, लाम ज़ेर ली, लिल क़िताली आ गया लिल क़िताल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तोआ की अलामत है। तोआ की फुल फॉर्म है मुतलक़, ये वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है। अगर हमारा सांस टूटता है तो हम यहाँ पर वक़्फ़ कर सकते हैं। ये गोल है और एक ये गोल है, अगर ये एक गोल से दूसरे गोल तक एक आयत कहलाती है। अगर आपको सांस इतना लंबा खींच सकते हैं कि एक गोल से दूसरे गोल तक, तो आप यहाँ वक़्फ़ कर सकते हैं, नहीं तो तोआ पर वक़्फ़ करने की हमें इजाज़त है। पूरी आयत कुछ इस तरह पढ़ेंगे। وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ। इसी तरह इस रुकू की मज़ीद आयत की भी आप हर हुरूफ पर क़वाइद का ध्यान रखते हुए मश्क़ कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।